مالکوں کے مالک نے اس دنیا میں اپنے قدم جمائے، فرد انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی آزادی کے لیے، میرے اور آپ کے چھٹکارے کے لیے۔ آئیے آج اسی کے تعلق سے سیکھتے ہیں، چند باتیں اسی کے تعلق سے جانیں گے۔ یوحنا کے مطابق لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 46ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 46ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جی اگر کوئی نکال دے تو پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے، بلند آواز سے پڑھیے گا۔ نتنیل نے اس سے کہا، نتنیل نے اس سے کہا کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ نتنیل نے فلپس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ جی فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے۔ فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے۔ سنیے گا، نتنیل فلپس سے روبرو کہتا ہے اور کہتا ہے اے فلپس، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز جنم لے؟ فلپس نے کہا دیکھ ہاں ایسا ممکن ہے، ہاں ایسا ہو گیا، چل اور میرے بھائی چل کے خود دیکھ لے کہ کیسا شخص ناصرت سے اٹھا ہے، جو معجزات کر رہا ہے، جو رہائی اور بحالی کا کام کر رہا ہے، جس نے میری دعوت کلام کیا ہے، جس نے اندریاس کو چنا ہے، جس نے شمعون پطرس یعنی کیفا کو چنا ہے، وہ ان تمام کی بابت باتیں کر رہا ہے، جس کی بابت یوحنا چلا کر کہہ رہا ہے دیکھو یہ خدا کا بندہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مگر نتنیل کے منہ میں جو لفظ ہے سنیے گا، نتنیل نے کہا کیا، اٹس اے کوسچن، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ دھیان کیجئے گا کلیسیا ذرا، آج کا ہمارا مضمون ہے معمولی سے غیر معمولی، عام سے خاص کی طرف، معمولی سے غیر معمولی کا سفر، عام سے خاص کی طرف کا سفر، یہ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ہی ذات میں پسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ہی ذات میں دبے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو بہت ٹینشن کا شکار ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس ہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدحال ہیں، جو اپنی ذات میں ہی دبے ہوئے ہیں، ان کے لیے ناصرت ایک اچھا پیغام لے کر آیا ہے۔ ناصرت یہ علاقے کا نام ہے جہاں سے ایک اچھا پیغام ہر اس فرد کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بہن کے لیے، ہر اس بھائی کے لیے، ہر اس بزرگ کے لیے جو اپنی ہی ذات میں یہ سوچتا ہے کہ شاید میں دبا ہوں، شاید میں پسا ہوا ہوں، شاید میرے لیے کوئی راہ نہیں ہے، شاید میرے لیے کوئی بہتر خبر نہیں ہے، شاید جس عالم میں میں ہوں یہ عالم کبھی نہ بدلے گا۔ مگر آج ایک بہتری کا پیغام ہے، آج حوصلہ مندی کا پیغام ہے، آج ایک خوشخبری ہے ان تمام کے لیے۔ نتنیل نے فلپس سے جب یہ کہا کہ ناصرت سے بھی اچھی چیز نکل سکتی ہے، تو اس کا مطلب تھا نتنیل اور باشمول دنیا اس وقت کی سب کا خیال تھا کہ ناصرت ایک ایسا مقام ہے، ناصرت ایک ایسی جگہ
सकती है। इसका मतलब है कि उस वक्त के लोगों के ख्याल में नासरत से कोई अच्छी चीज मुमकिन नहीं थी। यानी नासरत उस वक्त के लिहाज से एक छोटा सा शहर था, एक छोटा सा इलाका, जिसकी बाबत बड़े बड़े इलाके जो थे देखकर अपनी ही जात में फख्र का बाइस ठहरते, क्योंकि नासरत उस वक्त रूहानी तौर पर, मजहबी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, यानी हर एक जाविया से ऐसा इलाका था जो पिसा हुआ था, जो दबा हुआ था, जो तंगदस्ती का शिकार था, वो इलाका मुफलसी का शिकार था। लोग उसकी बाबत बुरी बुरी बातें कहते और करते थे और कहते थे कि कैसे मुमकिन है कि नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकले। इसी तरह हम में से बीसियों लोग हैं जिनकी बाबत बीसियों लोग ये कहते हैं कैसा मुमकिन है कि इस शख्स से भी कोई अच्छी बात मुमकिन हो, कैसा मुमकिन है कि योहानाबाद से भी कोई अच्छी चीज निकल आए, कैसे मुमकिन है नितनेल का ये ऐलान करना, नितनेल का ये बयान करना, क्या नासरत से अच्छी चीज निकल सकती है? और फिलिप्पस का ये कहना कि हाँ चल कर देख ले, ये उस बात की तस्दीक थी, ये दोहरी तस्दीक थी। एक तो ये तस्दीक थी, हाँ नासरत पिसा हुआ है, नासरत दबा हुआ है, नासरत का इलाका गरीबी का शिकार है, मुफलसी का शिकार है, तंगदस्ती का शिकार है। और दूसरी तरफ तस्दीक एक और थी कि हाँ एक अच्छी चीज वहां से निकली है, चल के देख ले। यानी वो दोहरी तस्दीक करता है। फिलिप्पस और नितनेल का ये मुकालमा हम सब के लिए खौफले का सबब है। इब्तिदाए आलम से बादशाहों का बादशाह, रहनुमाओं का रहनुमा, एक बड़ा रब्बी, एक खालिक मालिक, याद रखिए उसकी किताब में हमेशा मुफलस के हक में आवाज उठाई गई है। उसकी किताब में हमेशा गरीब के लिए आवाज है। अब जितने भी लोग खुद को पिसा हुआ समझते हैं, याद रखिए आप सबके लिए नासरत एक हौसला की जगह है, नासरत एक उम्मीद का मुकाम है, नासरत एक ऐसा इलाका है जो आप सबको हौसला दे। ये नासरत बहुत बड़े बड़े इलाकों से घिरा हुआ था, उस वक्त के बहुत बड़े बड़े इलाकों से घिरा हुआ था, मगर खुदा ने चुनाव उस छोटे से इलाके का किया। उसने उस वक्त की बड़ी सल्तनत रोमा का चुनाव नहीं किया, उसने रोमा के तख्त का चुनाव नहीं किया, बल्कि उसने एक छोटी से मुकाम का चुनाव किया। उसने उससे उस चीज का इंतखाब किया जिसे लोगों ने रद्द किया हुआ था, जिसे लोग जो थे वो धुतकारते थे, उसने उसका चुनाव किया। आप उठा लीजिए बाइबल मुकद्दस को और खोलिए और देखिए, आप पैदाइश की किताब से आनवर्ड चलते चले जाइए, आपको ऐसी बहुत सी शख्सियत का जिक्र मिलेगा, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो मुफलस, तंगदस्त थे, पिसे हुए थे, अपनी ही जात में हकीर और मरदूत थे, मगर खुदा ने उन्हीं लोगों को उठाकर हम सबके लिए एक पैगाम दिया कि मैं गरीब का खुदा हूं, मैं मुगलस का खुदा हूं, मैं मिस्कीन का खुदा हूं, मैं उन तमाम तक की आवाज हूं जिनकी कोई आवाज नहीं बन सकती। बाइबल मुकद्दस में से चंद एक शख्सियत का जिक्र करूंगा। आपको मालूम है कि खुदा ने इब्राहिम को चुना,
फकीर और मजदूर है, जो कमतर है, जो मुफलिस है, जो बेहाल है, उसका है चुनाव। अब सभी जानते हैं कि साउल का चुनाव उसने किस हालत में किया। साउल का चुनाव किस हालत में किया? साउल गधे चरा रहा था। क्या चरा रहा था? गधे चराने वाला क्या बन गया? गधा। गधे को चराने वाला, गधों की परवरिश करने वाला, गधों के पीछे दौड़ने वाला, गधों को मैदानों में ले जाने वाला। खुदा ने उस शख्स पर नजर की जिस पर किसी की नजर नहीं थी। खुदा ने उसका चुनाव किया जिसे लोग गधा कहते होंगे। आज भी हम गधा चराने वालों को गधा कहते हैं। देखो गधे पे गधा बैठा है, ये बहुत से मुहावरे। मगर उस वक्त साउल को लोग कहते होंगे, उस वक्त साउल की बात कहते होंगे ये गधा है। मगर खुदा ने जिसे लोग गधा कहते थे, जिसे लोग कमतर जानते थे, उसका चुनाव करके साबित कर दिया कि मैं गधे को भी बादशाह बना सकता हूं, मैं गधे को भी उठाकर सर बुलंद कर सकता हूं। यह खुदा की नजर में गरीब का, मस्कीन का और मुफलस का मुकाम है। आज इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास रुपया पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज परेशान अगर होना है तो इस सबब से हो, क्या जो गधों को चलाने वालों को बादशाह बनाते हैं मेरे पास है या नहीं है, ताकि मुझे भी वो बादशाह बना दे, ताकि मुझे भी वो चुनाव मेरा करे जिस तरह उसने साउल का चुनाव किया, भेड़े चराने वाले दाऊद का चुनाव उसने किया, जिस तरह उसने राहब फाहिशा का चुनाव किया। आप सभी जानते हैं कि राहब क्या थी? एक फाहिशा थी, एक कस्बी थी, एक बदकार खातून थी। मगर खुदा ने उस बदकार का चुनाव करके ये साबित किया कि मैं बदकारों का भी क्या हूं, खुदा। और उसी राहब फाहिशा से खुदा ने यीशु मसीह पैदा हुआ। उसी राहब फाहिशा से, उसकी नस्ल से। आप पढ़िए मत्ती के मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, वो नस्बनामा पढ़े तो उस नस्बनामा में राहब का नाम है। तो राहब क्या थी? गैर कौम में से, गैर कौमों में से बदकार खातून, एक कस्बी खातून। मगर खुदा ने गैर अक़वाम में से राहब यानी इस औरत का चुनाव करके साबित कर दिया कि मैं हर उसका खुदा हूं जो खुद की नजर में और लोगों की नजर में बदकार, मुफलस और बदहाल है। आज अपने आप को कमजोर ना समझे, आज अपने आप को कमतर ना समझे, आज अपने आप को हकीर ना समझे। क्यों? इसलिए ना समझे कि जो गधों को चलाने वाले को बादशाह बनाता है, जो भेड़ों को चलाने वालों को बादशाह बनाता है, जो बदकार राहब कस्बी को एक ऐसी नस्ल में शामिल करता है जो बादशाहों की है, वो बादशाह आज हमारे लिए एक खादिम बन के हम सबको बादशाह बनाने आया। आज हम सबको उठाने आया, आज हम सबको ऊपर लेकर जाना चाहता है। उसके आने का मकसद है हमें उठाना, उसके आने का मतलब है हमें बहाल करना। और सुनिए, जो नासरत में आया वो उसकी पैदाइश तो बैतलहम में हुई थी, बैतलहम में उसकी पैदाइश हुई। मगर किताब मुक़द्दस में लिखा है कि उसने परवरिश नासरत में पाई। कहां पर पाई? नासरत में उसने परवरिश पाई। एक छोटे से इलाके में उसने परवरिश पाई। और जब वो छोटे से इलाके में परवरिश पाता है तो अपनी मनादी का आगाज भी उसी इलाके से करता है, उसी जगह से ऐलान करता है। गरीब के लिए, मुफलस के लिए, तंगदस्त के लिए, बदहाल के लिए, चिल्कने और चिल्लाने वाले के लिए, रोने वाले के लिए, पिछे हुए के लिए नासरत में खड़ा होकर वो ऐलान करता है। आइए पढ़िए, देखिए कि जब वो नासरत से मनादी का आवाज करता है तो क्या कहता है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, चौथा बाब, 16वीं 17वीं और 18वीं आयत का मुताबिक है। और वो नासरत में आया। जी बोलिएगा, कहां पर आया? सारी कलीसिया बोले, कहां पर आया?
नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाना में गया, और पर्दे को खड़ा हुआ, और पर्दे को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि, और किताब खोलकर सुनिए, एक खास मकसद उसकी मनादी का, एक खास मकसद आसमान को छोड़कर जमीन पर आने का, एक खास मकसद खुदा का खादिम हो जाना, एक खास मकसद बुलंद का कमतर हो जाना, एक खास मकसद था उसका। नासरत में परवरिश पाना एक खास मकसद था उसका। नासरत में दोबारा आना और नासरत की हैकल में खड़े होकर यशायाह का सहीफा पढ़ना एक खास मकसद था। अब वो एक खास मकसद को लेकर आया है मजहब पर, और खास मकसद क्या था? आम को खास करे, मामूली को गैर मामूली करे। और नासरत में जब आया तो लिखा उसने किताब मुकद्दस को खोला, और किताब मुकद्दस को खोलने के बाद उसने खास सहीफा निकाला। ये मनादी की इब्तिदा थी। लिखा उसने यशायाह नबी का सहीफा निकाला और पढ़ना शुरू किया। जी, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, इसलिए कि उसने मुझे किनको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। गरीबों फिर बोलिए, किनको खुशखबरी देने के लिए भेजा है? गरीबों को खुशखबरी। इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। गरीब से अमीर तक, आम से खास तक, मामूली से गैर मामूली तक, इस काम के लिए यीशु मसीह की तखसीस की गई है। इस काम के लिए उसे नशा किया गया है कि वो गरीबों को खुशखबरी सुनाए। किनको खुशखबरी सुनाए? गरीबों को। कितने अपने आप को गरीब समझते हैं? कितने समझते हैं? हाथ खड़ा करके तो खुशखबरी कौन लेकर आया? बोलते हाथ को नहीं खड़ा, मानता ही कोई ना गरीब। गरीबों को खुशखबरी सुनाओ। किनको खुशखबरी सुनाओ? किनको? गरीबों को खुश, उसके जमीन पे आने का मकसद गरीबों को खुशखबरी सुनाना है। किनको खुशखबरी सुनाना है? गरीबों को खुशी की खबर सुनाना है। जी आगे। इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। जी, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को क्या करे? कैदियों को क्या करे? जो टेंशन में कैद है, जो गरीबी में कैद है, जो मुसलसी में कैद है, जो गुनाह की कैद में है, जो परस्ती की कैद में है, जो लालच की कैद में है, जो हसद की कैद में है, उन तमाम तर कैदियों को वो क्या करे? क्या करे? कैदियों को रिहाई देने के लिए, गुलामों को आजादी देने के लिए खुदावंद ने यीशु मसीह ने कहा तुझे मसा किया है। आमीन, आमीन। जी आगे। अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाओ, अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाओ, कुछ लोगों को आजाद, आमीन। किनको आजाद करूं? किनको आजाद करूं? यानी ये खुदा का मकसद कुचले हुओं को क्या करना था? यानी आज का दिन कुचले हुओं की आजादी का दिन है। आज का दिन कुचले हुओं की आजादी का दिन है, कैदियों की रिहाई का दिन है, गरीबों को खुशखबरी सुनाए जाने का दिन है, मुफल्लिसों को खुशखबरी किस बात की? खुशहाली की सुनाए जाने का दिन है। आमीन, आमीन। अगर वो नासरत पर निगाह कर सकता है, अगर वो साउल पर निगाह करता है, अगर वो दाऊद का चुनाव करता है, अगर वो राहब फाहिशा का चुनाव करता है, और अगर वो रूत का चुनाव मुआदियों में से करता है, तो लामोहला आज वो हम सब के चुनाव के लिए यहाँ पर मौजूद है। आज हम सब के चुनाव के लिए वो यहाँ पर आया है कि मुझे चुने। और बाइबल का उसने लिखा है उसने हमें शाही कहनों का फिरका बनाया। पहले हम कोई कौम ना थे, मगर अब खुदा की खास मलकियत है। हमें किसकी मलकियत है? किसकी मलकियत है? खास मलकियत है। कौन सी मलकियत है? कौन सी मलकियत है? आम तो की हुए, आम से क्या हुए?
लेकर आया, जिस तरह वो खुशी की खबर गरीबों के लिए, खुशी की खबर कुचले हुओं के लिए, आजादी की खबर कैदियों के लिए, गुलामों के लिए लेकर आया, इसी तरह आज हमारे पास एक खबर मालूम है। कौन सी खबर? देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बुशारत देता हूं। देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बुशारत देता हूं। वो क्या है कि देखो आज के दिन बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जिम पैदा हुआ। आमीन आमीन। किसके लिए मुनज्जिम पैदा हुआ? हम सबको ये मालूम है, हमारे लिए। मगर जिस तरह यीशु मसीह ने ये खबर हम तक पहुंचाई, फरिश्तों ने ये खबर नबियों रसूलों तक पहुंचाई, फरिश्तों ने, मरियम ने, रसूल ने ये खबर आगे तक पहुंचाई, आज मेरा और आपका फर्ज है कि इस खबर को लेकर आगे चलें। आज मुफल्लिसों को खबर खुशी की सुनाने का मेरा वक्त है, आपका वक्त है कि हम लोगों को हौसला दें कि भाई बहन परेशान ना हो। यीशु मसीह के आने का मकसद तो ये है कि वो रिहाई दे, आजादी दे, हमें छुड़ाए और हमारी मुफल्लिसी में हमारी खुशहाली बन जाए। आमीन आमीन। कितनों के पास खुशी की खबर है? आइए हाथ को बुलंद कीजिए, बुलंद कीजिए, हाथों को बुलंद करके बताएं, खबर है खुशी की? आमीन। क्या इस खबर को छिपाए रखें? छिपाने का वक्त है? किसी दूसरे को बताने का वक्त है? आमीन। नुसरत बताएगी, खुशी की खबर दूसरे को देने का वक्त है। आमीन। क्यों? क्योंकि हमने खबर पाई है। सामरिया की उस औरत ने कहा, क्यों ना मैं जाकर अपने लोगों को बताऊं कि क्रिस्टस जिसे मसीह कहते हैं वो आया है। आमीन आमीन आमीन। और अगर कोई खबर छिपा ले, अगर कोई खबर छिपाए तो बहन ऐसे ही है, किसी खादम ने कहा बीमार से दवाई छिपाना। बीमार से क्या छिपाना? दवाई छिपा लेना। एक मरते हुए मरीज से दवाई छिपा लेना बिल्कुल इसी तरह है किसी गरीब से खुशखबरी को छिपा लेना। एक कैदी को रिहाई देने के लिए खबर मेरे और आपके पास है। आइए इस त्योहार को महज ये गुब्बारों, कपड़ों, खानों का त्योहार न समझें, डांस और कहकाहों का सबब न समझें, रासारी पूरे जनाबा के गाने चलते रहे, डांस होता रहे, शराबें चलती रही हैं, लड़ाइयां होती रही हैं, मगर किसी को मालूम नहीं है कि खबर खुशी की कौन सी है। कोई तैयार नहीं है कि किसी दूसरे को बताए कि खुशी की खबर क्या है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी मुस्लिम अक़वाम के लोग मौजूद हैं, मगर कोई किसी को बताने वाला नहीं है कि ये खबर क्या है, कि आज का पैगाम असल में गरीबों का पैगाम, मस्कीनों का पैगाम है, बदहालों के लिए पैगाम है। आइए जब घरों में जाएं तो इसे दूसरों से बांटें, एक दूसरे को बताएं कि मकसद क्या है इसका, इसके पीछे रियलिटी क्या है। आज का दिन असल में छुटकारे का दिन है, किसी दूसरे को बताएं। और जब हम एक नए साल का आगाज करने वाले हैं एक हफ्ता के बाद, तो इस कसम के साथ कि अगर मैंने आज तक किसी को खबर नहीं दी तो मैं खबर दूंगा, अगर मैंने खबर को छिपा लिया तो मैं खबर को फैलाना शुरू करूंगा। आमीन आमीन आमीन। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबके पास खुशी की खबर की पूरी मौजूद है और ये मरीजों को चाहिए। आमीन आमीन। जिन्हें यीशु की पैदाइश के मतलब का मालूम नहीं है कि उसके पैदा होने का मकसद क्या था, उन्हें ये पूरी खोल कर खिलाए ताकि वो क्या हो जाए, आजाद हो जाए। आमीन। उन्हें खुदावंद की हुजूरी में लाने का दिन वक्त है। एक नए आने वाले साल में हम अकद करें कि खुदावंद तेरी पैदाइश की बाबत, तेरी सलीब की बाबत, तेरे उस बयान के बारे में, तेरे उस पैगाम के बारे में हम दूसरों को बताएंगे और तेरे करीब लेकर आएंगे। फिर क्रिसमस का सही मजा है। हम क्रिसमस के सही मानों को भूल चुके हैं, हम क्रिसमस के सही पैगाम को भूल चुके हैं, जो पैगाम फरिश्तों
چیز ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ خوشیاں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے کے لیے یہی ہوگا کہ اسے ایک پیغام دے دیا جائے کہ ناصرت کا پیغام بھائی تیرے لیے ہے، مفلسی اور غریبی کے خلاف خوشحالی کا پیغام